Good morning, dear students. Welcome to the class of Teaching of Physical Sciences. Student, today in this class, we are going to discuss learning resources for teaching of physical sciences, whereby we will discuss the meaning and definition of learning resources, कि लर्निंग रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है, कैसे परिभाषित किया जाता है, ये होते क्या हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ यूजिंग लर्निंग रिसोर्सेज, and which are the appropriate learning resources for teaching science, or you can say any particular subject, and what criteria we should follow while selecting a learning resource for teaching a particular subject. So I have gathered few definitions from internet as well as from 2-3 books, and I have compiled the best suitable definitions which will make you understand the real meaning of learning resources, and it will be helpful for you while you will be in real teaching profession. So these will guide you how to make your teaching learning process most effective by selecting appropriate learning resources. Okay, let us begin with first meaning and definitions of learning resources. The very first definition, it says learning resources are the components of learning activities which may provide someone knowledge, ability, attitude, conviction, emotion and feeling. मीन्स लर्निंग रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी को भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस देते हैं, एंड विदाउट लर्निंग रिसोर्सेज द लर्निंग एक्टिविटी कैन नॉट रन वेल. Another definition says, according to Dictionary of Instructional Technology, learning resources are any resources, for example, people, instructional material, instructional hardware, etc., which may be used by a learner to bring about or facilitate learning. तो अगर डिक्शनरी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बात करें, लर्निंग रिसोर्सेज लोग हो सकते हैं, अनुदेशन का मटेरियल हो सकता है, या अनुदेशन के लिए कुछ हार्डवेयर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है, ठीक है, और जिसे एक लर्नर यूज़ करता है ताकि उसकी अच्छे से लर्निंग हो सके. अनदर डेफिनेशन, according to Association for Educational Communication and Technology, any or all of resources like data, person or other things which can be used by students to help them in achieving learning goals may be termed as learning resources. There is one more for better enhancement of knowledge. Learning resources are generally understood to be text, videos, software and other materials that assist students to meet expectations for learning as defined by provincial or local curricula. तो अगर हम इन चारों डेफिनेशन का एनालिसिस करें तो हम सभी में ये पाते हैं कि लर्निंग रिसोर्सेज वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में लर्निंग होती है जिसे वो सीख सकता है, और उस लर्निंग को वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है. और ये लर्निंग रिसोर्सेज जो हो सकते हैं, ये कोई डेटा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टूडेंट को उनका गोल अचीव करने में भी मदद करती हैं. और अगर हम जनरल बात करें तो हम लर्निंग रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, हम कहते हैं कोई रिटर्न मटेरियल होता है जिसको टेक्स्ट भी कहते हैं, हम रिटर्न मटेरियल हो गया, या कोई वीडियो बना हुआ, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ ये बना के, सो इट इज़ ए लर्निंग रिसोर्स अबाउट लर्निंग रिसोर्सेज. सिमिलरली देयर माइट बी ए सॉफ्टवेयर जो आपकी किसी चीज़ को सीखने में मदद करता है, जैसे कि आप कैलकुलेटर करते हैं या कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, लाइक दैट. और कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपको करिकुलम के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, दैट इज टर्म्ड एज लर्निंग रिसोर्स. और इसी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कनाडा ने डिफाइन किया है. लर्निंग रिसोर्सेज रेफर टू एनी पर्सन और एनी मटेरियल whether acquired or locally produced with instructional content or function that is used for formal or informal teaching learning purposes. And learning resources may include but are not limited to print and non-print materials, audio, visual,
इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्स इनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई भी मटेरियल जिसको हम या तो परचेज करते हैं या हम लोकली उसको प्रोड्यूस करते हैं विद इंस्ट्रक्शनल कंटेंट और इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, जिसको हम फॉर्मल तरीके से जैसे रियल क्लासरूम होता है टीचिंग लर्निंग, या इनफॉर्मल तरीके से टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें ये सब इंक्लूडेड हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है, ये सारे भी हो सकते हैं या ये नहीं भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जो ये चीज़ें हैं जैसे कि प्रिंट हो गया, प्रिंट में बुक्स आ गई, मैगजीन्स आ गई, जर्नल्स आ गए, न्यूज़पेपर आ गए, लाइक दैट एंड ऑल। और नॉन प्रिंट मटेरियल्स जिनको हम प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल हो गया, चेयर हो गया, या आपके पास रियल पहाड़ हो गए, हमारे पास जो रियल हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, स्नो हैं, लाइक दैट एंड ऑल। ऑडियो हो गया, कोई आपका रिकॉर्डेड मैसेज है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ना उसको टेक्स्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। या विजुअल हो गया, कोई वीडियो आपको दिख रहा है जिसकी साउंड नहीं है, या कोई ऑडियो विजुअल मटेरियल भी हो सकता है जिसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या डिजिटल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, और इवन ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। आदमी भी एक लर्निंग रिसोर्स होता है जिससे आप सीख सकते हैं। सो दिस इज द कंक्लूडिंग डेफिनेशन कि लर्निंग रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें लर्निंग में हेल्प करते हैं या हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, जिस एक्सपीरियंस की वजह से हमारी लर्निंग होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, कि हमें लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ क्यों करना है। इफ़ वी लुक डीपली, हम अध्यापक बनने वाले हैं, हमने बच्चों को पढ़ाना है, और बेसिकली हम अध्यापक बनेंगे सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंडरी लेवल मीन्स 9th ऑनवर्ड्स, 9th 10th 11th 12th। तो अगर हम एलिमेंट्री लेवल की बात करें, इन सम केसेस हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम एलिमेंट्री लेवल पर भी बच्चों को पढ़ाएं, 6th 7th 8th को भी हमें पढ़ाना पड़ सकता है, ये डिमांड होती है या एज़ पर नीड होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम एलिमेंट्री लेवल की बात करें, द चिल्ड्रन गेन नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कंसेप्ट बाय एक्सपीरियंस। बच्चे जो हैं साइंटिफिक कंसेप्ट्स को एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। मान लीजिए आप छठी कक्षा में हैं, 7वीं में हैं, 8वीं में हैं, तो जो हमारे कंसेप्ट्स होते हैं उसके हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस देते हैं उनको, ठीक है, उनका नॉलेज देते हैं, और कुछ चीज़ें हम उन्हें ऑब्जर्व कराते हैं, लेबोरेटरी में ऑब्जर्व कराते हैं, या छोटे मोटे प्रैक्टिकल कराते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, व्हाट वी डू, हम एक गेंद लेते हैं, गेंद बच्चे को दिखाते हैं, उस गेंद को जैसे हम धरती पे पटकते हैं वो उछल कर वापस आ जाती है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ का हम उनको एक नॉलेज करवा रहे हैं, साइंटिफिक लॉ है, और जिसका हम उनको प्रैक्टिकल डेमो दे रहे हैं, तो वो उस ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम क्या करते हैं, हम उसी बॉल को दीवार पे मारते हैं, दीवार से जब वो टकराती है, बाय हिटिंग द वॉल द बॉल कम्स बैक टू अस। दैट शोज कि हमने दीवार को हिट किया तो दीवार ने बॉल को वापस हमें हिट किया, तो वी मेक देम लर्न एक्शन एंड रिएक्शन। लाइक दैट देयर आर मैनी एग्जांपल्स यू मे रिमेंबर फ्रॉम योर स्कूल डेज। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस। सो लर्निंग स्कूल लेवल पे हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, एलिमेंट्री लेवल पे बाय एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। बट जब हम हायर क्लासेज में जाते हैं, when we move to higher classes, for example we pass out from 10th 11th 12th, right? So what happen, their learning resources play a vital role. Why? Because at that stage the information contained in the books only is not suffice, वो sufficient नहीं होती है। And in the present era we know there has been a vast growth in each and every field, and therefore the curriculum of science is reframed and restructured। और आज का जो हम विज्ञान करिकुलम की बात करें तो वो रिफॉर्म हो चुका है, रीस्ट्रक्चर हो चुका है, उसको दोबारा से बनाएंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी कंटेंट्स डाले गए हैं, ऐसे कंसेप्ट डाले गए हैं जिनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। एंड वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू ओनली बुक्स विद द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू नॉलेज। आज हम जानते हैं कि आज बहुत सारा नया नॉलेज क्रिएट हो चुका है, न्यू कंसेप्ट्स आ चुके हैं, नई थ्योरीज आ चुके हैं साइंस के अंदर पर्टिकुलरली, एंड दिस कैन बी ट्रांजेक्टेड इन इफेक्टिव मैनर ओनली विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज। अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम इन चीज़ों की लर्निंग बच्चों में सही तरीके से नहीं करवा सकते हैं। द चाइल्ड, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल इन इमीडिएट एनवायरनमेंट, हम इन सभी को यूज़ कर सकते हैं एज इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज।
कहने का मतलब यह है कि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है और बहुत सारे नए कंसेप्ट हैं, नई थ्योरीज आ चुकी हैं, नई रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिससे नए नए कंसेप्ट, नए प्रिंसिपल, नए थ्योरीज और नई नई एप्लीकेशन साइंस की अवेलेबल हो चुकी हैं। अगर वो सारी बच्चों को लर्निंग करवानी है तो हम सिंपल किसी एक लर्निंग रिसोर्स तक लिमिट नहीं रह सकते, हमें डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उन्हें एक वैरायटी दे सकें एक्सपीरियंसेस की, ताकि उनकी प्रॉपर लर्निंग हो सके। देन अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज से हम उनको एक्सपेंड कराते हैं, बट व्हाट इज कॉल्ड एज अ अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स? किसको हम एक अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स कहेंगे? क्यों ज़रूरी है ये? बिकॉज बीइंग ए टीचर, व्हेन वी हैव टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड पर्पसफुल एंड यूजफुल learning experience for learners, it becomes the responsibility of teachers, we including me also, we all teachers, to provide them fruitful learning experience. So जब हम एक fruitful learning experience देना था, तो it is our responsibility to select, will we have to select a particular learning resource, that is appropriate learning resource. और उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहता है? नो व्हाट वी, विच लर्निंग सोर्स वी कैन कॉल एज एन अप्रोप्रिएट लर्निंग सोर्स, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यू आर वाचिंग देम ऑन माई स्क्रीन। द फर्स्ट, ए लर्निंग सोर्स दैट विल एनरिच एंड सपोर्ट करिकुलम। एक तो वो करिकुलम को एनरिच करे और उसको सपोर्ट करे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स एंड वैरायटी ऑफ एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स एंड मैच्योरिटी लेवल्स ऑफ द लर्नर्स सर्व्ड। तो यानी कि सबसे पहले क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट लर्निंग का क्या होगा? एक तो वो करिकुलम को सपोर्ट करता हो, उसको एनरिच करता हो, और वो ये ध्यान रखे कि जो हमारे पास बच्चे हैं, लर्नर जो हैं, उनके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हैं, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं, उनके मेच्योरिटी लेवल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे, और उनकी डाइवर्सिटी है इंटरेस्ट में और पर्सपेक्टिव। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें ऐसा अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स लेना है ताकि वो सब बच्चों की एक प्रॉपर जो है लर्निंग करवा सके। सेकंड, a particular learning resource is that will stimulate growth in factual knowledge, literary appreciation, aesthetic values and knowledge of societal standards। कि एक जो लर्निंग रिसोर्स है वो फैक्चुअल नॉलेज भी दे, लिटरेरी अप्रिशिएशन भी दे, उसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए और वो बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज उनको दे। इट मस्ट एंश्योर एस्थेटिक वैल्यूज़, उसमें एस्थेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, और जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसका नॉलेज भी उसमें होना चाहिए। दैट मीन्स एक लर्निंग सोर्सेज इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करता नज़र आना चाहिए जो बच्चों में होने चाहिए। देन लर्निंग रिसोर्स दैट पॉजिटिवली एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग सोच जो है वो पॉजिटिवली और सही तरीके से जो हमारी विविधता है, जो विविध हमारा पर्सपेक्टिव है कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को लेकर, उसको भी एड्रेस करे, ensuring that learners have an opportunity to develop under गाइडेंस। और ये इंश्योर करे कि लर्नर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले, किसको देखते हुए? कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, हिंदू मुस्लिम का है, रिलीजन का है, कास्ट का है, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो है ऐसा लर्निंग रिसोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है जो इस तरह की सारी डाइवर्सिटीज को एड्रेस करे। मीन्स एड्रेस करने का मतलब क्या है? वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड ट्रीटिंग ऑल डाइवर्सिटीज डिफरेंसेस इक्वली, एंड ये इंश्योर करे कि गाइडेंस, टीचर के गाइडेंस के अंडर और इस लर्निंग रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उनमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले सभी लर्नर्स को लर्न करने की। एंड द प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, और जो बच्चों में आलोचनात्मक विश्लेषण की एबिलिटी भी विकसित करे, उसको प्रैक्टिस करवाए। एंड द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, जजमेंट्स इन देयर डेली लाइफ्स, ताकि वो जो है एक समझ के साथ, निर्णय के साथ जजमेंट बना सकें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। देन फोर्थ, an appropriate learning resource is that which represent gender, appearance, sexual orientation, ability, disability, belief system, family structure, race and ethnicity and socio-economic status। एक लर्निंग रिसोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को, मतलब वो
जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर्स इनका भी ध्यान रखता है, अपीयरेंस का ध्यान रखता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का ध्यान रखता है, एबिलिटी और डिसेबिलिटी को भी ध्यान में रखता है कि कोई एबल है कोई एबल नहीं है, डिसेबिलिटी किस बच्चे उसको ध्यान रखता है, बिलीफ सिस्टम हमारा बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या है, हमारी रेस और एथनिसिटी कैसे चलती है, एंड हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है सब बच्चों का, इन सब बातों का ध्यान रखता है। तो ये जो चार जो चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें हमें एक लर्निंग रिसोर्सेज में देख कर ही उसे सिलेक्ट करना चाहिए। इट शुड नॉट हर्ट एनीबडीज इमोशंस एज वेल। आपको लगता होगा कि साइंस में हमें ये इस तरह के लर्निंग रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत पड़ी है, बट देयर आर सम टॉपिक सम सिचुएशंस जब साइंस से बाहर हटके हम साइंस को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि आप सबको इन चीज़ों में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट ना, जब हमने इन चार चीज़ों की बात की, अब क्वेश्चन आता है कि हमने जब एक अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्स को सिलेक्ट करना है तो विच क्राइटेरिया वी शुड फॉलो। सो जब हमने एक लर्निंग रिसोर्स को सिलेक्ट करना है, चाहे वो साइंस हो, फिजिकल साइंसेज हो, लाइफ साइंसेज हो या कोई और सब्जेक्ट हो, वी शुड टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, राइट। इसका हम कंक्लूजन भी करेंगे। सो देयर आर 6 पॉइंट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम वन गुड बुक दैट आई विल प्रोवाइड यू लेटर ऑन। द वेरी फर्स्ट, one should take care of the following criterion for selecting a resource of learning. The first, learning resources should support and be consistent with provincial and local pilot program curriculum outcomes. सबसे पहला पॉइंट है, जो भी लर्निंग रिसोर्स होगा वो जो चाहे लोकल पायलट प्रोग्राम हो, लोकल पायलट होता है छोटे लेवल का, या कोई बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे आप बीएड का करिकुलम कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, तो उस करिकुलम की जो आउटकम है, उस करिकुलम को पूरा करने के बाद आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है उसको एड्रेस करने वाला होना चाहिए। और वो डिफरेंट होता है, जैसे आप बीएड यहाँ से कर रहे हैं, हिमाचल से कर रहे हैं, तो यहाँ के करिकुलम के हिसाब से आपके करिकुलम में ये कंटेंट है तो आपको उस हिसाब से लर्निंग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। आप किसी दूसरी स्टेट में करेंगे या साउदर्न स्टेट में करेंगे, किसी और कंट्री में करेंगे, तो वो वहाँ के प्रोग्राम के हिसाब से उसका लेवल होना चाहिए। तो पहली ये क्राइटेरिया कि जिस पर्टिकुलर जगह पे आप करिकुलम को आप फॉलो कर रहे हैं उस लोकल या प्रोविंशियल करिकुलम के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी डेवलप्ड बाय कॉम्पिटेंट टीचर्स एंड मीट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी इन फैक्चुअल कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। जो लर्निंग रिसोर्स आप यूज़ करने वाले हैं, एक तो वो कॉम्पिटेंट टीचर्स द्वारा बने होने चाहिए। दैट मीन्स आप हर किसी का या किसी ने भी ऐसे फेक गलत लैंग्वेज नहीं है उसकी, कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। आप बेटर बुक्स उठाइए, बेटर रिसोर्सेज यूज़ कीजिए। वो हम बुक्स क्या होती हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, वन बाय वन वी विल टेक आफ्टर दिस लेक्चर, वी विल टेक इन अदर लेक्चर्स। हम आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से लर्निंग रिसोर्स होते हैं वहाँ हम डील करेंगे। बट जस्ट कि लर्निंग रिसोर्स जो है इट शुड बी डेवलप्ड बाय कॉम्पिटेंट टीचर्स। कॉम्पिटेंट मतलब जो पेस विद चेंजिंग पेस ऑफ टाइम जो अपने आप को अपडेट रखते हैं उनके द्वारा बना होना चाहिए, और उसके हाई स्टैंडर्ड होने चाहिए क्वालिटी के। यूँ तो क्वालिटी को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल हम करिकुलम को ध्यान में रखते हुए एक क्वालिटी का एक क्राइटेरिया अपना बना सकते हैं, जिसमें कंटेंट जो फैक्चुअल होना चाहिए और इफेक्टिव उसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सो ये चीज़ हमें सेकंड जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। थर्ड, लर्निंग रिसोर्सेज शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द सब्जेक्ट एरिया एंड फॉर द एज, इमोशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी लेवल, लर्निंग स्टाइल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स फॉर हुम द मटेरियल्स आर सिलेक्टेड। तीसरा पॉइंट, ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि लर्नर की मेच्योरिटी लेवल को ध्यान में रखना है। तो मेच्योरिटी जब आती है तो उसमें ये सारी बातें हम ध्यान में रखते हैं कि ये सब्जेक्ट एरिया और वो सब्जेक्ट किस पर्टिकुलर एज के बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, उनका इमोशनल लेवल क्या है। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं बच्चों के इमोशंस भी जुड़ जाते हैं सब्जेक्ट के साथ, आपने स्कूल में अक्सर देखा होगा। उनकी एबिलिटी होती है, कोई किसी काम को कर सकता है, कोई किसी काम को नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के प्रैक्टिकल की बात करें, डायग्राम्स ड्रॉ करने की बात करें, तो दीज भी थिंग्स। और लर्निंग स्टाइल, सबके लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कोई बोल के पढ़ता है, कोई लिख के पढ़ता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई सो के पढ़ता है, देर आर डिफरेंट, कोई सुन के पढ़ता है, सो लर्न करता है मतलब। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स फॉर हुम द मटेरियल्स आर सिलेक्टेड, और किस सामाजिक वातावरण में वो विकसित हुए हैं, इन चीज़ों का वो ध्यान रखता है। इसकी भी हम बात करें, जब हम एग्जाम्पल हम स्पेसिफिक लर्निंग रिसोर्सेज की बात करेंगे, देर आई विल डील विद ऑल दीज पॉइंट्स, आई विल रिकॉल देम अगेन, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस लर्निंग रिसोर्सेज का ये थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ, लर्निंग रिसोर्सेज शुड हैव एस्थेटिक, लिटरेरी एंड और सोशल वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू कहीं ना कहीं एक रिलीजन टाइप की फीलिंग हमें देती है, फेथ की बात करती है कि जब हम लर्निंग रिसोर्स लेते हैं तो उसमें पूरा फेथ होना चाहिए कि जैसे कि अगर ये लर्निंग रिसोर्स है तो इट इज़ 100% एक्यूरेट, ये 100% जो है एक्यूरेट है और इसे ऐसे ही यूज़ करना है। लिटरेरी
एंड और सोशल वैल्यू, जिसकी लिटरेचर उसका सॉलिड होना चाहिए, एंड सोशल वैल्यू और उसकी सामाजिक वैल्यू भी होनी चाहिए। सामाजिक वैल्यू मतलब वो समाज में आसानी से मिलना चाहिए या वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। दिस वी विल डील अगेन इन डिटेल व्हेन वी विल गो फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। देन फिफ्थ, लर्निंग रिसोर्सेज शुड हैव ए फिजिकल फॉर्मेट एंड अपीयरेंस सुटेबल फॉर देयर इंटेंडेड यूज। एक तो उनका भौतिक परिवेश होना चाहिए, फिजिकल फॉर्मेट होना चाहिए और अपीयरेंस होनी चाहिए जो उनके इंटेंडेड यूज़ के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इट इज़ अ प्रेजेंटेबल दैट यू आर लिसनिंग मी एंड यू आर viewing the content which I am teaching you, so that your both senses must be involved, ऑडियो विजुअल। आप देख भी रहे हैं, साइट भी आपकी इन्वॉल्व है और सुन भी आप रहे हैं, तो लिसनिंग एबिलिटी भी आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। और अपीयरेंस दैट इट शुड बी nicely prepared for you. Then 6, learning resources should be one of a variety of media presentation modes. और लर्निंग रिसोर्सेज जब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास मीडिया के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस हुआ है थोड़ी देर पहले कि ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है कि उसमें ऑडियो भी दिखाया जाए, विजुअल भी दिखाया जाए, टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। सो हमारे पास वेराइटी होनी चाहिए। लर्निंग रिसोर्स एक जैसा ही नहीं होना चाहिए कि इट शुड बी मोनोटोनस जिससे बोर्डम आता है। सो इट शुड देयर मस्ट बी ए वेराइटी ऑफ मीडिया प्रेजेंटेशन मोड. So these are the few criteria for selecting a learning resource. So in conclusion, what we say, when we have to select an appropriate learning resource along with academic, psychological and social considerations, अगर हम एकेडमिक मतलब करिकुलर की बात करें, साइकोलॉजिकल बच्चों के एज लेवल की बात करें, मेच्योरिटी की बात करें और सोशल कंसिडरेशंस की बात करें कि किस सामाजिक परिवेश में बच्चे रह रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, तो वी नीड टू लुक फॉर दीज 4 क्राइटेरियाज. फर्स्ट, appropriateness of learning resources. It is important to select an appropriate learning resource for ensuring optimum लर्निंग अमंग द लर्नर्स. अप्रोप्रिएट होना चाहिए तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंसिडरेशन. अप्रोप्रिएट, उस अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया कि ये पॉइंट्स क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखने होते हैं. सो एक तो अप्रोप्रिएट होना चाहिए लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा, अवेलेबिलिटी. It is always suggested that a teacher should prefer the locally available learning resources rather than resources from external sources. और एक इस बात का ध्यान रखना है जब अवेलेबिलिटी की बात हो कि जो लोकली अवेलेबल है दे शुड बी यूज्ड rather than sources from external sources. महंगे नहीं होने चाहिए, बहुत दूर से नहीं मंगवाने पड़ने चाहिए. वो महंगे की बात हम इकोनॉमिक में करेंगे, बट द लर्निंग रिसोर्स शुड बी अवेलेबल लोकली सो दैट चिल्ड्रन या बच्चे जो हैं वो उसको अपने आप भी उसको रीच कर सकें, उसकी एक्सेस बच्चों तक होनी चाहिए. द रिसोर्स रूम विद ऑल रिक्वायर्ड लर्निंग रिसोर्सेज शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द लर्नर्स एंड अवेलेबल टू द लर्नर्स एंड टीचर्स सो दैट दे कैन यूटिलाइज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और एक लर्निंग रिसोर्स का एक हम रूम भी बना सकते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट लर्निंग रिसोर्सेज को इकट्ठे कर सकते हैं. वो हम बात की बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में जाके. लर्निंग रिसोर्स सेंटर्स की भी बात करेंगे थोड़ी सी उसमें. So there must be a room with all required learning resources and it should be easily available for learners as well as teachers so that it can be utilized to its maximum. Then economic. और जब हम एक लर्निंग रिसोर्स को सिलेक्ट करते हैं इट शुड नॉट बी हाईली कॉस्टली. इसकी हाई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी इकोनॉमिक, सस्ता होना चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा फाइनेंस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. It is very important to use the learning resources that are cost effective because in a developing country like ours, India, where finance is a major issue, we should construct low cost learning resources. And classroom learning resources, improvised learning resources and locally available learning resources may be better option. तो हमें ऐसे learning resources choose करने चाहिए जिनको हम क्लास में ही डिज़ाइन कर सकें और उनको लोकली तैयार उनको कर सकें. Then fourth is safety. The learning resources should be safe and secure for users. जो लर्निंग रिसोर्स हम यूज़ करते हैं वो सेफ़ होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए फॉर इसके मतलब इसके यूज़र्स के लिए, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो लर्नर्स हों, किसी को भी उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं जो लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो दोनों की फॉर्म में हो सकता है. That can be a software, that can be a data, that can be a person, that can be community, that can be nature, like that and all. But that facilitates learning. और वो बच्चों के हिसाब से होता है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है. एंड
इकोनॉमिक होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी सेफ फॉर यूज बाय द लर्नर्स। तो आज हम इतने डिस्कस करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप द डिफरेंट लर्निंग सोर्सेज। मोस्ट प्रोबेबली वी विल टेक अप फर्स्ट द टेक्स्ट बुक्स एज पर आवर सिलेबस एंड गाइडलाइंस, and then we will move for others one by one. Thank you. Have a nice day.